ہے ابو طالب کے آنگن میں گلے شہوار دو، ہے ابو طالب کے آنگن میں گلے شہوار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، ہے ابو طالب کے آنگن میں گلے شہوار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے ہیں تو نے جعفر تیار دو، گود میں پالے ہیں تو نے جعفر تیار دو۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سجاد حسین صاحب قبلہ بہار سے کہ برونق افروز ممبر اور فضائل و مصائب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں نعرہ درود پڑھیں۔ نعرہ سروار۔ ایک بار دیگر بار محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ سلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ محمد الملک۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا دائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عزیزان گرامی قدر، محترم صاحب کرام، بزرگان اور تمام جناب زہرا کے چاہنے والے، جیسا کہ ناظم محترم نے اعلان فرمایا ہے کہ ذاکر سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ سیدہ کے فضائل اور مسائل بیان فرمائے، چونکہ ان تاریخوں کا حق ہی یہی ہے۔ اور تو ساری زندگی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، جو دل چاہے سال بھر پڑھیے، لیکن کم از کم
تاریخوں کا اگر خیال رکھا جائے اور گفتگو کو چونکہ اتنی پاک و پاکیزہ ذات ہے، اتنی طیب و طاہر ذات ہے کہ جس کے لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جو آیت بھی طیب و طاہر ہے، جو آیت بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی سماعتیں ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 27 جنوری کو میں نے آپ کی خدمت کی تھی، اور 10 دن پچھلے سال سے گھٹا لیجئے تو اب کہ یہ 17 جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ 10 دن گھٹ جاتا ہے۔ یہ ہم لوگ الٹا حساب کرتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت یوں کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے سوال کے ذریعے سے، لیکن خاص طور سے جتنے بھی نوجوان ہیں اگر ان کے ذہنوں تک بات میں پہنچا سکا انشاءاللہ تو آج کی آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، آج آخری مجلس میں انشاءاللہ حق بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ جناب زہرا کی شہادت کے سلسلے میں 2 روایتیں ہیں، ایک تو 75 دن کے اعتبار سے جو تقریباً گزر گیا، اور ایک 95 دن کے اعتبار سے جو سلسلہ آج کا یعنی آج کا دن ہے۔ تو پہلے زمانے میں قبلہ مجلسیں کم ہوتی تھیں شہادت فاطمیہ کی، آج کے زمانے میں سلسلہ اتنا بڑھ گیا ماشاءاللہ کہ اب وہ 75 دن کی روایت سے لوگ 95 دن والی روایت کو ملا دیتے ہیں، یعنی اب یہ 20 دن مسلسل ماشاءاللہ مجلسوں کا سلسلہ اضافہ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں شہادت فاطمیہ کی 1-2 مجلسیں ہو جاتی تھیں، آج یہ اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ سلسلہ آپ کی خدمت میں ہے۔ تو جن صاحب نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط؟ میں دیکھیے ہر بات کہ 2 رخ ہے نا، یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، تو تھوڑا سا وہ اہل بیت کی طرف آیا تھا، یعنی تھوڑا چاہنے والا ہوا تھا، اب چاہے مروت میں ہوا ہوا مجھے نہیں معلوم، ہاں لیکن کہنے لگا کہ یہ صحیح ہوا، یہ جو سلسلہ ہے وہ صحیح ہے۔ تو میں نے اس سے پلٹ کے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ اگر صحیح ہے تو اضافہ ہونا چاہیے یا کمی؟ نہیں بات آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اضافہ ہونا چاہیے، تو کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو میں نے کہا پھر تم نے اعتراض کیوں کیا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، پھر تم نے اعتراض کیوں کیا؟ اب ایک بات میں نے اس سے پلٹ کے کہی، میں آیت کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ 2 بات میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کے اس سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا بھائی بہت ساری چیزیں پہلے ایسی نہیں تھی جو اب ہیں۔ اب ایک جملہ سنبھالیے گا جملے کو، میں نے کہا بھائی بہت ساری گمراہ کرنے والی چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تھی جو کہ آج کے زمانے میں ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کہنے لگے پہلے زمانے میں گمراہ کرنے والی چیزیں کم تھیں، آج کے زمانے میں زیادہ ہو گئی، جیسے موبائل پہلے زمانے میں کم تھا، اب چاہے کوئی کس بھی غرض سے یوز کرے لیکن گمراہ کن شے ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی نوجوان انکار نہیں کر سکتا۔ تو پہلے زمانے میں جو چیزیں کم تھیں آج کے زمانے میں زیادہ ہو گئی، توجہ فرمائیے گا، یعنی پھر جملہ بدل کے کہوں، پہلے زمانے میں گمراہ کرنے والی چیزیں کم تھیں جو آج کے زمانے میں زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اتنا بتائیے کہ جیسے جیسے گمراہیاں بڑھیں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ویسے ویسے ہدایت بڑھے گی۔ آپ متوجہ نہیں ہیں جس جملے کو میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے، بھائی جیسے جیسے گمراہیاں بڑھتی جائیں گی حضور ویسے ویسے ہدایت کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے۔ بھائی جیسے جیسے گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں
ویسے ویسے اللہ ہدایت کا سلسلہ بڑھاتا جا رہا ہے. کبھی یہ ہدایت عاشور کے ذریعے سے ہے, کبھی شہادت فاطمیہ کے ذریعے سے ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا پیچھے نہ ہو جائے. آپ نے اندازہ فرمایا بھائی, کبھی یہ ہدایت عاشور کے ذریعے سے ہو رہی ہے, کبھی یہ ہدایت شہادت فاطمیہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بہرحال ہو رہی ہے ہدایت, ہو رہی ہے ہدایت. توجہ کیجئے گا, ہماری جانیں قربان ہو جائے آیت اللہ وحید خراسانی کے اوپر. آیت اللہ چونکہ میرے عزیزوں یہ بھی بڑی کمال کی منزل ہے اس ملت کی کہ یہ اپنے رہنماؤں کو نہیں بھولتی, یہ اپنے رہنما کو فراموش نہیں کرتی. اور ہم نے دیکھ بھی لیا جن لوگوں نے اپنے رہنما کا دامن چھوڑا وہ خود بھی گمراہ, رہنما بھی گمراہ. تو فرما رہے وہ خود بھی گمراہ ہو گیا, رہنما بھی گمراہ ہو گئے. لیکن جن لوگوں نے دامن پکڑا ماشاءاللہ وہ بھی کامیاب اور رہنما بھی کامیاب. توجہ سنیے گا, آیت اللہ وحید خراسانی, بہت اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں. اس منزل کو اگر میں پہنچا لے گیا تو میں سمجھوں گا کامیابی کی منزل میں قدم رکھ دیا میں نے. آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک جملہ کہا, توجہ, انہوں نے کہا کہ شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا جائے. یہ سلسلہ بھی میں نے اس لیے آمادہ کیا کہ پہلے سے یہ جو آپ کا پوسٹر ہے ماشاءاللہ, یہ جو یہاں کی نورانیت ہے, یہ پہلے سے جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے سے پہنچ گیا تھا. اب جملہ سنیے, کہنے لگے کہ شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا جائے. یہ ملت ہے تقلیدی ملت. تقلیدی ملت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرجع کہتا ہے ہم بغیر چو چرا کے مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ, آپ اگر ایسا حوصلہ بڑھائیں گے تو پھر میں آگے کی بات کروں گا. کہنے لگے جو مرجع کہتا ہے ہمارا ہم بغیر چو چرا کے مان لیتے ہیں. بغیر چو چرا کے مان لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے مرجع کو مانتے ہی نہیں, ایسے رہبر کو مانتے ہی نہیں جو منبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہے کہ بھائی جب تک صحیح رہوں پیروی کرنا. کہنے لگے ہم ایسے رہنما کو نہیں مانتے جو منبر پہ بیٹھ کے یہ کہے جب تک صحیح رہوں پیروی کرنا, جب راہ راست سے بھٹک جاؤں تو سیدھے راستے پہ لگا دینا. کہنے ہم ایسے رہنما کو نہیں مانتے, اسی لیے مرجع کی بات ہم منہ کو بند کر کے مانتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی نے کیا کہا؟ آیت اللہ وحید خراسانی کہنے لگے کہ شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا جائے. عاشور کی طرح. میرے عزیزوں, جو مجھ سے پوچھ رہا تھا نا, جو مترس تھا شہادت فاطمیہ کے سلسلے میں, اتنی مجالس نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی میری ملت ہے تقلیدی ملت, اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے کہ عاشور کو, شہادت فاطمیہ کو عاشور کی طرح کیوں منایا جائے, تو اس جملے کو جا کے پوچھو وحید خراسانی سے. خدا طول عمر عنایت کرے. آیت اللہ وحید خراسانی کو بہت بڑا نام ہے تاریخ تشیع میں, جس پہ اسلام کا دار و مدار ہے. توجہ کیجئے گا, آیت اللہ وحید خراسانی نے اب ایک جملہ کہا. جب معترض ان کے پاس پہنچا, کہا اتنا لمبا چوڑا تو سلسلہ نہیں تھا, اب جنتی مجالس ہو رہی ہیں. توجہ کیجئے گا, آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک جملہ کہا جو ببانگ دہل کہا, چھپ کے نہیں کہا, ڈر کے نہیں کہا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ بھائی عاشور کا فلسفہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد جس گھر میں عاشور پہنچی یزید بدنام ہوا. جس گھر میں عاشور پہنچی اس گھر میں یزید بدنام ہوا, اور اتنا بدنام ہے کہ آج اس کی ملت بھی اس کا نام رکھنا پسند نہیں کرتی. آج اس کی ملت بھی اس کا نام رکھنا پسند نہیں کرتی. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ بڑی ذمہ
یزید بدنام ہوا ویسے شہادت فاطمیہ سے قاتل زہرا بدنام ہوا۔ ہو جائے، اسی لیے ہم مرجع کی بات مانتے ہیں، اسی لیے انہیں تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آج کو دیکھ کے نہیں بولتے، وہ آج کو دیکھ کے کلام نہیں کرتے، وہ کل کو دیکھ کے کلام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مستقبل ہے مرجع کے ہاتھ میں، ہمارا مستقبل ہے مرجع کے ہاتھ میں۔ آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، یہ تھا شہادت فاطمیہ کا میسج جو میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میرے عزیزوں، اب میں اس طیب و طاہر ذات کے لیے آغاز کرنے جا رہا ہوں اس میسج کے بعد۔ توجہ کیجئے گا، دنیا کی ساری عورتیں، نوجوانوں جملہ سننا، دنیا کی ساری عورتیں سچ تو بول سکتی ہیں، لیکن یہ امکان نہیں کہ جو بولے وہ سچ ہو۔ دیکھیے میں نے ادبی جملہ کہا ہے، ادب میں کہا ہے، ادب میں کہا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ جانے اور پہچانے جانتے ہیں، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، دنیا کی ساری عورتیں سچ تو بول سکتی ہیں، لیکن یہ امکان ہی نہیں کہ جو بولیں، بھائی ماضی نہیں مستقبل سمجھئے، جو بولے وہ سچ ہو سوائے زہرا کے۔ دنیا کی ساری عورتیں سچ تو بول سکتی ہیں، ایک جملہ میں نے بڑے سناٹے میں کہہ دیا، آپ نے حوصلہ بڑھا دیا، اب دوسرے جملے کا وزن برداشت کیجئے گا، حوصلہ بڑھائیے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا کی ساری عورتیں ادھر تو مڑ سکتی ہیں جدھر حق ہو، جزاک اللہ، دنیا کی ساری عورتیں ادھر جا سکتی ہیں جدھر حق ہو، لیکن یہ امکان نہیں کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے۔ لیکن یہ امکان ہی نہیں، لیکن یہ امکان نہیں کہ جدھر مڑ جائے اگلا حق ادھر ہو جائے، حق ادھر نہیں ہو سکتا سوائے زہرا کے، سوائے زہرا کے۔ میں نے کہا آج کا دن جو ہے، آج کا دن نہیں بلکہ شہادت فاطمیہ کو مسلسل 3-4 دن ہم نے جناب زہرا کے نام پر قربان کر دیا، اور ہمیں وہی پڑھنا ہے جو ادھر سے عطا ہوگی، جو ہم سے زہرا پڑھوائیں گی، توجہ ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں تقریباً 15-20 منٹ ہو گیا، بڑا اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں میرے عزیزوں، لہذا میری یہ کاوش ہے اور میری آج کی اس مجلس میں کوشش یہ ہے، آج کی یہ مجلس 2 پہلوؤں کے اوپر ہے۔ پہلا پہلو ہے فضیلت جناب زہرا، اور دوسرا پہلو ہے مقصد جناب زہرا۔ آج کی مجلس کے 2 پہلو ہیں، پہلا فضیلت جناب زہرا، دوسرا مقصد جناب زہرا۔ چونکہ جب تک ہم مقصد کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم مقصد تک پہنچیں گے کیسے، تو لہذا سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے میں آغاز کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، ترجمہ تقریباً سب کو پتا ہے، 100-150 سال سے آپ ماشاءاللہ مجلس سے سن رہے ہیں۔ کیا ہے ترجمہ؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ یہی تو ترجمہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نے ہر لفظ کا ترجمہ کیا لیکن رجس کا ترجمہ نہیں کیا کہ رجس کیا ہے۔ میں نے کہا حضور اگر لفظ کے ایک معنی ہو تو ترجمہ کروں،
भाई लफ्ज की अगर 20 माना हो तो फिर तर्जुमा कैसे हो? मैं लफ्ज दोहराता जाऊंगा जहां से मैंने मेहनत की है, और आप साथ देते जाएंगे, इंशाल्लाह मेराज पे चली जाएगी मजलिस। तवज्जो कीजिएगा, चूंकि नूरे ज़हरा आया वहीं से है, नहीं तवज्जो कर रहे हैं, मेराज पे चली जाएगी मजलिस। तवज्जो है। अब जुमला सुनिए, अल्लाह का इरादा है। हुजूर आपने इन्नमा का तर्जुमा नहीं किया। इन्नमा क्या है? ये पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, साहिबान अदब तशरीफ फरमा है। इन्नमा कहते हैं अदाते हस्र को। हस्र समझे आप? भाई अगर हस्र न समझे तो हिसार तो समझेंगे हैं? हिसार का मतलब है, जिसे अपनी जबान में कह ले, जो भी कह ले, हिसार का मतलब है हिफाजत करना। ठीक है, ये हिसार क्या है? कहा हमारे घर का जब भी बच्चा या बच्ची या कोई बूढ़ा कोई भी अगर अपने घर से बाहर जा रहा हो तो हम उसे हिसार करते हैं। ये हिसार क्यों करते हैं? कहा इसलिए कि वो जहां जाए हिफाजत से जाए और वापस आए। तवज्जो सुनिएगा भाई, इसीलिए तो हिसार करते हैं, जहां जाए। अच्छा ये भी कमाल नहीं कि तन्हा कोई जलालपुर से दिल्ली जा रहा हो तभी हिसार होगा, कहा नहीं, अगर कोई सऊदी में रह रहा हो तो यहां से बैठे बैठे हिसार कर देते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, कहने लगे यहां से हुजूर बैठे बैठे हम उसका हिसार कर देते हैं कि वो महफूज हो जाए। कहा किबला ये क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने कहा हुजूर जुमला सुनिए, इन्नमा कहते हैं सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कहा जितनी महफूज सिक्योरिटी होगी उतना ही घर वाले महफूज होंगे। जो लोग समझ गए उन्हें मेरा सलाम है। जितनी महफूज सिक्योरिटी होगी उतना ही महफूज घर वाले होंगे। दूसरा इन्नमा सुनिए, इन्नमा कहते हैं बाउंड्री को। बाउंड्री ये जो है ना भाई, इमाम बाड़े की बाउंड्री है ना, इसे कहते हैं इन्नमा। ये बाउंड्री क्यों है? कहा यहां भी दो किस्म के लोग बैठे हैं। जब यहां मजलिस के बाद इंशाल्लाह तबर्रुक तो बटेगा ना, मजलिस के बाद जब तबर्रुक बटेगा तो तबर्रुक लेने भी दो किस्म के लोग जाते हैं। बाज वो हैं जिन्हें तबर्रुक गेट पे मिलेगा, बाज वो है जिन्हें तबर्रुक मजलिस में मिलेगा। क्या कहा? बाज वो है जिन्हें तबर्रुक वहां मिलेगा, बाज वो है जिन्हें तबर्रुक यहां मिलेगा। वहां का तबर्रुक सबको मिल जाएगा, यहां उसी को मिलेगा जिस पे ज़हरा मेहरबान हो। वो वाला तबर्रुक सबको मिल जाएगा। यहाँ किसे मिलेगा? कहा जिस पे ज़हरा की अदा होगी, जिस पे ज़हरा मेहरबान होगी, यहाँ तबर्रुक उसी को मिलेगा। जुमला साहिबान अदब नौजवानों बहुत अच्छा आप समाअत कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है और मैं वाकई पढ़ना चाह रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, आपने इन्नमा सुना, इन्नमा का मतलब है सिक्योरिटी। जितनी महफूज सिक्योरिटी उतने ही महफूज घर वाले। तवज्जो फरमा रहे। कितना आपने तर्जुमा ऐसा क्यों किया? मैंने कहा किसी वजह से किया है। इस वजह से किया क्योंकि बाज अफराद वो हैं जो बाहर वालों को घर में दाखिल करना चाह रहे थे। समाप्त नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं? जज़ाकल्लाह, हौसला बढ़ा दिया आपने। मैंने कहा बाज वो अफराद है ना जो, इसलिए इन्नमा सिक्योरिटी है। देखिए मैंने कहा जितनी मजबूत सिक्योरिटी उतना ही महफूज घर वाले। अब अगर किसी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी आप देखें कितनी मजबूत है, वहां कोई दूसरा आदमी चला जाएगा? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लगाने वाला नाकिस, अहले बैत की सिक्योरिटी करने वाला कामिल। जब वहां कोई दाखिल नहीं हो सकता तो यहां कैसे आएगा? कहने लगे कुछ लोगों ने कोशिश बहुत की कि बाहर वालों को अंदर ले आए, लेकिन मामला यह था कि कैसे आ जाएंगे, चूंकि सिक्योरिटी खुदा की थी। सिक्योरिटी खुदा की थी, लिहाजा बाहर वाले अंदर नहीं आ सके। कैसे? अब आयत से आयत को मिलाइएगा। कहने लगे हुजूर ये आयत जो है ना वो अज़वाज रसूल की शान में नाज़िल हुई। अब मतलब समझे आप, बड़ी दूर की घुमा के लाए। ये आयत कहां से? अज़वाज रसूल के शान में नाज़िल हुई। मैंने कहा भाई तुम गलत समझ गए, ये वाली आयत नाज़िल नहीं हुई। इस आयत का चूंकि ये है आयत दरमियानी आयत,
اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے نا، یعنی جو اس آیت سے جہاں سے آیت متصل ہے وہ آیت پڑھ رہا ہوں، جا کے دیکھیے گا۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے جو نبی کی بیویوں کے شان میں نازل ہوئی۔ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَآتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، یہ ہے سلسلہ پورا۔ انما یرید اللہ، کیا ہے ترجمہ؟ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی رسمیں انجام نہ دو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی رسمیں انجام نہ دو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ نکالتی رہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، گھروں میں رہو، میدان میں مت جاؤ۔ یہ میں نے ترجمہ کیا آپ کی خدمت میں، کہنے لگے کیا ہے؟ کہا گھروں میں محفوظ رہو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی آیت نازل ہوئی ہے، آپ کہنے لگے وہ والی آیت نازل ہوئی ہے، اس سے ملی ہوئی۔ میں دلیل دے کے جا رہا ہوں اور قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاگلوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ قرآن آیا ہے صاحبان شعور کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ نے کہا یا اولی الالباب۔ قرآن کو بے وقوفوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے صاحبان شعور کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اہل بیت کے فضائل جب بھی پڑھنا، سیدہ کے فضائل پڑھنا، تو راوی کی روایتوں سے مت پڑھنا، چونکہ لوگ یہ کہہ کے کاٹ دیں گے کہ ضعیف ہے۔ قرآن کی آیتوں سے پڑھو۔ اب میں قرآن کی آیت سے پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ کیا کہا؟ نبی کی بیویوں کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ زندگی بھر جملہ یاد رہ جائے گا جب تک میں دوبارہ آپ کی زیارت نہ کر دوں، اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ گیا۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا اللہ نے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اے میرے اللہ اتنا بتا دے، ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا اور تیرے معاشرے میں بھی نہیں ہوتا۔ جو نماز پڑھتا ہے بیچارہ، وہ ایک وقت میں زکوٰۃ کیسے دے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جو نماز پڑھے گا وہ اس وقت زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، جو حضور زکوٰۃ دے گا وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں 27 مقام پہ کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ سنیے گا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ اے میرے اللہ 27 مقام پہ کہا، ایک مورد بھی نظر نہیں آیا۔ اگر ایک مورد بھی نہ ہو تو آیت بیکار، جسارت سے کہہ رہا ہوں، اگر ایک مورد بھی نہ ہو تو آیت بیکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مورد ہے، جزاک اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک مورد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ اے میرے اللہ اگر ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوا تو آیت بیکار۔ کہا نہیں، میری نگاہ میں ایک بندہ ایسا ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ بڑھا دیا۔ میری نگاہ میں ایک بندہ ہے، میں نے کہا اگر بندہ نہ ہوگا تو آیت بیکار ہو جائے گی، آیت بیکار ہو جائے گی۔ جا کے علی کو سلام کرو کہ اگر علی حالت رکوع میں زکوٰۃ نہ دیتے تو آیت بیکار۔ میں صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ کیا کہا؟ انما یرید اللہ۔ اچھا، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو، دیکھیے اب تک میں اہل بیت ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں چونکہ تمام علماء کرام نے، خاص طور سے مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدہ کی طہارت کے شان میں، چونکہ مرکز طہارت کا نام ہے سیدہ، مرکز طہارت کا
का नाम है सैयदा। अच्छा, सिर्फ मरकज तहारत सैयदा नहीं है, मरकज इस्मत भी सैयदा ही है। तो जो है मरकज इस्मत का नाम भी सैयदा है, तन्हा मरकज तहारत नहीं है। कहा हुजूर तर्जुमा तो आपने अभी पूरा किया ही नहीं। मैंने कहा हाँ, मैंने रिज्क का तर्जुमा नहीं किया। क्या है रिज्क का तर्जुमा? मैं दोनों भाइयों के तर्जुमे करूंगा, अपना भी तर्जुमा करूंगा और उनका भी तर्जुमा करूंगा। ठीक है, दोनों तर्जुमा, हौसला बढ़ाइएगा। तर्जुमा क्या है? अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत अत्हार को रिज्क से दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। ये रिज्क क्या है? अब सुनिए, रिज्क के अंदर कितने हर्फ हैं? जज़ाकल्लाह। रिज्क के अंदर कितने हर्फ हैं? 3। हुजूर जितने हर्फ हैं उतने ही माना है इसके। जज़ाकल्लाह। आप अगर हौसला बढ़ाएंगे तो मैं कोई बात कहूंगा, जितने लफ्ज है ना इसके, जितने हर्फ है उतने ही इसके माना है। मैं दलील इसलिए दे रहा हूं कि हमारे बरादरान ने लिखा कि रिज्क के 3 माना है। कौन कौन से? कहा पहला माना है कुफ्र, दूसरा माना है शिर्क, तीसरा माना है निफाक। क्या है? अल्लाह का, अब तर्जुमा कीजिए, अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत अत्हार को कुफ्र, शिर्क और निफाक से दूर रखे। हो गया तर्जुमा? हो गया तर्जुमा? अल्लाह का इरादा है, मैं आखिरी फर्क तक तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह का इरादा है कि वो अहले बैत अत्हार को कुफ्र, शिर्क और निफाक से दूर रखे। बात तन्हा भी कुफ्र की कीजिए। क्या है अल्लाह का इरादा? कि वो कुफ्र से अहले बैत को दूर रखे। भाई, जब कुफ्र अहले बैत के करीब नहीं जा सकता तो कोई काफिर, मैं पूरा जुमला नहीं पढ़ूंगा, पूरा जुमला नहीं पढ़ूंगा, तो कोई काफिर अहले बैत का करीबी क्या होगा? होगा करीबी। भाई, जब कुफ्र करीब नहीं है तो चाचा काफिर कैसे करीबी होगा? काफिर तो हो ही नहीं सकता करीबी। कहने लगे दूसरा माना है शिर्क। अब तर्जुमा कीजिए, फिर जितने एतबार से आप कहेंगे उतने एतबार से मैं पढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो कीजिएगा। दूसरा माना है शिर्क। ऐ अहले बैत अत्हार, अल्लाह का इरादा है कि वो शिर्क से आपको दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। शिर्क क्या? भाई, जब शिर्क अहले बैत नहीं, सैयदा के करीब नहीं जा सकता तो कोई मुशरिक, मैं किसी मंजिल तक लाऊंगा, कोई मुशरिक सैयदा का करीबी क्या होगा? ठीक है। तीसरे माना है निफाक के। फिर तर्जुमा कीजिए, ऐ अहले बैत तहारत, अल्लाह का इरादा है कि वो निफाक से आपको दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। मेरे भाई, जब निफाक अहले बैत के करीब नहीं जा सकता तो कोई मुनाफिक, तवज्जो करना, तो कोई मुनाफिक अहले बैत का करीबी क्या होगा? करीब जा नहीं सकता, है ना? तवज्जो देखिए, गुनाह रिज्क के, अब मैं अपने माना कर रहा हूं, रिज्क के जो माना है ना, रिज्क के माना है गुनाह। एक माना ये भी है रिज्क के, रिज्क के माना है गुनाह। तो देखिए, गुनाह तो गुनाह है ना, दिन भर में बहुत सारे गुनाह हमसे हो जाते हैं, इंसान खताकार है तो गुनाह तो कर ही देगा ना, बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। ठीक, तो मैं सारे गुनाह को छोड़ के जो शहादत फातिमिया का मकसद है उसे पहुंचाऊं। जुमला सुनना, आखिरी फर्क तक तवज्जो। एक गुनाह है ग़स्ब, है कि नहीं? है कि नहीं? मैंने कहा ना, गुनाह तो गुनाह है, गुनाह को छोटा ही समझना बड़ा गुनाह। जज़ाकल्लाह। मैंने कहा तबलीग भी तो होनी चाहिए। गुनाह को हुजूर छोटा ही समझ लेना बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है। कहने लगे गुनाह की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो ग़स्ब गुनाह है या नहीं है? सब मिलके बोले ग़स्ब गुनाह है। तो फिर तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह का इरादा है कि ग़स्ब सैयदा का करीब नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह। भाई, जब ग़स्ब सैयदा के करीब नहीं जा सकता तो कोई ग़ासिब,
गासिब इनके करीब नहीं जा सकता, तो कोई गासिब इनका करीबी क्या होगा? गासिब इनके करीब कैसे आ सकता है? मफहूम अदा हुआ, मतलब अदा हुआ। अब एक माना जो उलमाए लुगत ने यहाँ पे लिखे हैं, जिसे जाके देखना हो देखे। मैं जो बात पढ़ रहा हूँ कुरान से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उलमाए लुगत ने लिखा कि रिज्क के एक माना है लानत, जहां सारे माना है ना रिज्क के। मैं देखना चाहता हूं जितना हौसला आपने दिया है ना, इस एक जुमले में ताकत लगाऊंगा मैं। जज़ाकल्लाह, समझ गए बहुत से लोग। एक जुमले में ताकत लगाऊंगा, लेकिन मुझे रिस्पांस चाहिए। रिज्क के एक माना है लानत। हुजूर तर्जुमा कीजिए कि लानत जिंदगी भर अहले बैत के करीब नहीं जा सकती। भाई जब लानत अहले बैत के करीब नहीं जा सकती तो कोई लानत है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने लगे जिंदगी भर रिस्क क्या माना है? सारे मैंने माना आपकी खिदमत में पढ़ दिए, बड़ा आपने हौसला दे दिया। इस मंजिल को थोड़ा सा और आसान कीजिएगा। अहले बैत का क्या इरादा है कि वो रिज्क से इतने माना मैंने कर दिए हैं, एक दो तो याद नहीं जाएंगे आपको। रिज्क से अहले बैत अथहार को दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। अब यहाँ पे फिर मैं अपने मर्जा का सहारा लूं। हमारे यहाँ तर्जुमा क्या होता है? तर्जुमा ये होता है कि ए अहले बैत तहारत, अल्लाह का इरादा है कि वो आपसे रिज्क को दूर रखे। आयतुल्लाह जवाद आमुली ने कहा कि ये तर्जुमा है गलत, ये तर्जुमा है गलत। का हुजूर सही क्या है? कहा अगर आपने तर्जुमा ये किया कि ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा है कि वो आपसे रिज्क को दूर रखे, जो दूर रखने का हक है, तो इसका तर्जुमा क्या हुआ कि अहले बैत करीब जाना चाहते हैं। समझ गए? अहले बैत करीब जाना चाहते हैं, खुदा दूर करता, खुदा दूर करता। कानी फजीलत को कम मत करो, मतलब ये नहीं है। जज़ाकल्लाह, सुनिएगा, मतलब ये नहीं है। तर्जुमा ये है कि ए अहले बैत तहारत, अल्लाह का इरादा है कि वो रिज्क से आपको दूर रखे। अब तर्जुमा करो, क्या मतलब है? यानी रिज्क करीब जाना चाहेगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रिज्क करीब जाना चाहेगा, खुदा दूर करेगा, खुदा दूर करेगा। अब पूरी मजलिस का माहसल सुनिए। रिज्क करीब जाना चाहेगा, खुदा दूर करेगा। मतलब ये है कि रिज्क अहले बैत के करीब नहीं आ सकता। आज हम पूछते हैं ना कि इस मल्लत के अलावा कोई और मजलिस पे क्यों नहीं आता, कोई दूसरा मजलिस पे क्यों नहीं शरीक होता? हुजूर अल्लाह का वादा है कि वो अहले बैत से रिज्क को दूर रखे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये खुदा का इरादा है कि वो रिज्क से अहले बैत अथहार को दूर रखे, जो दूर रखने का हक है। तवज्जो है, फजीलत के अजीब गोशे आप समात फरमा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैंने कहा ना मजलिस दो रुख पे है। पहला फजीलत जनाब ज़हरा और दूसरा मकसद जनाब ज़हरा। अब फजीलत के हवाले से दो गोशे और मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा, चूंकि दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, इसलिए कि मकसद वाला पहलू ज्यादा है कि मकसद जनाब ज़हरा क्या है। लिहाजा फजीलत के हवाले से दो जुमले और पढ़ूंगा। मेरे अजीजों, आप क्या यूं ही समझ रहे हैं कि सैयदा की मिल्लत में हम हैं? लोग उल्टा कहते हैं कि सैयदा हमारी मिल्लत में है। भाई ये खुदा का करोड़ों शुक्र है कि उसने सैयदा जैसी नस्ल में हमें रखा। हमारे यहाँ थोड़ी सैयदा है, हम सैयदा के हिसाब में। तवज्जो फरमा रहे, जुमला सुनना नौजवानों। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ने कहा, तुम्हें पता है मेरी जद्दा का नूर
कितना पाको पाकीज़ा है, कितना तय्यब व ताहिर है। इमाम ने फरमाया सुनो, कहा ये नूर पाक सुल्बों से होकर पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। इतना तय्यब व ताहिर नूर, इतना पाको पाकीज़ा नूर कि जनाब आदम से लेके सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा। सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। नूर नबूवत सुल्ब अब्दुल्लाह में आया, नूर इमामत सुल्ब अबू तालिब में आया। इनमें भी सारे नूर आए, एक नूर नहीं आया। उस नूर को लेने के लिए नबी को मेराज पर जाना पड़ा। सुना ना आपने? इतना मोतबर, इतना पाको पाकीज़ा नूर कि वो आया नहीं, उसे लेने के लिए नबी को मेराज पर जाना पड़ा। इमाम सादिक से ही रिवायत है, फजीलत का गोशा सुनिए। इमाम ने कहा अगर तुम ये चाहते हो मेरी जद्दा की फजीलत को समझो तो पहले शब कद्र को समझो। अगर तुम चाहते हो मेरी जद्दा की फजीलत को समझो तो पहले शब कद्र को दर करो। मौला शब कद्र क्या है? कहा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कद्र की अहमियत क्या है? कहा जिसने लैलतुल कद्र को समझ लिया उसने सैयदा को समझ लिया। लैलतुल कद्र की अहमियत यह है कि उस रात में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमाया, लिहाजा लैलतुल कद्र इतनी बाफजीलत है। लोग कहते हैं कि लैलतुल कद्र 1000 रातों से अफजल नहीं है, 1000 महीनों से, 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से। मैं पूछना चाहता हूं तारीख से, लैलतुल कद्र मोतबर कैसे हुई? लैलतुल कद्र बाफजीलत कैसे हुई? कहा इसलिए कि अल्लाह ने इस रात में कुरान को नाजिल फरमाया। क्या? कुरान को नाजिल फरमाया। मैंने कहा नहीं, जुमला ठीक करो, कुरान को नाजिल नहीं फरमाया, कुरान सामित को, बोलिएगा मेरे साथ, कुरान को नाजिल नहीं फरमाया, कुरान सामित को, जो चुप है, जो साइलेंट है, जो बोल नहीं सकता, उस कुरान को अल्लाह ने इस रात में नाजिल फरमाया। मेरे अजीजों, जिस रात में कुरान सामित नाजिल हो वो इतनी मोतबर, तो जिस सहरा की आगोश से 11 कुरान नाते, जिस सहरा की आगोश से 11 कुरान नातिक आए हो, उस बीवी की अहमियत क्या होगी? आप मुकम्मल चूंकि जनाब ज़हरा के फजाइल सुन रहे हैं, लिहाजा मेरा दिल लग रहा है मेरे अजीजों, लिहाजा दिल लग रहा है। एक जुमला और सुनिए, फजीलत सुनना चाहते हैं आप? लैलतुल कद्र से मुशाबहत दी जनाब ज़हरा, अगर पहचानना चाहते हो, देखिए ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। चूंकि घर में अक्सर ऐसा होता है कि घर के जितने बच्चे हैं ना, वो सब बुजुर्गों के जरिए से पहचाने जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, भाई लोग अगर पूछे कि ये किसका बच्चा है तो लोग कहते हैं फला साहब का, है ना, यानी वालिद के जरिए से बच्चा पहचाना जाता है, माँ बाप के जरिए से बच्चा पहचाना जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के जरिए से माँ बाप पहचाने जाएं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं कि बच्चों के जरिए से माँ बाप पहचाने जाएं, सिवाय 2 बच्चों के। हौसला बढ़ाइएगा, सिवाय 2 बच्चों, मैं वजाहत करने का आदी नहीं हूं, वजाहत नहीं करता, सिवाय 2 बच्चों के, सिवाय 2 बेटियों के, सिवाय 2 बेटियों के जिनके जरिए से बाप पहचाना गया। कौन? कहा एक है ज़ैनब, जो है बाप की जीनत, और एक है सैयदा। सिवाय 2 बेटियों के जिनके जरिए से बाप पहचाना गया। मैं बड़ी जसारत कर रहा हूं मेरे अजीजों, इसलिए कर रहा हूं कि फजाइल का समंदर आपकी खिदमत में उड़ेलना चाहता हूं। क्या है? कहा हमेशा तरीक़ेकार यही है कि बच्चे बाप के जरिए से पहचाने जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारी जाने कुर्बान हो जाए, सबके घरों में हदीसे किस्सा है या नहीं है? ना माशाल्लाह, आप पढ़ते हैं ना, हुम फातिमा, क्या है? हुम फातिमा, और क्या? अबूहा व बालुहा व बनुहा। ए मेरे अल्लाह, ये क्या कयामत है? भाई बच्चों के जरिए से बाप को पहचानवाया, ये तो सही है, लेकिन
नाम ही नहीं लिया। जो नहीं फरमाई आपने, भाई बच्चों के जरिए से पहचानवाना अलग है, लेकिन ये क्या, तूने तो नाम ही नहीं लिया किसी का, सिर्फ सैयदा का नाम, सिर्फ सैयदा का नाम। क्या कहा? हुम फातिमा। कौन है चादर के नीचे? कहा फातिमा है, चादर के नीचे फातिमा है। तवज्जो सुनिएगा मेरे अजीजों, अल्लाह क्यों नहीं पहचानवाना चाहता, इसे भी सुन लीजिए। शारिक भाई ने मुझसे कहा कि हुजूर आप शेर भी पढ़ते हैं? मैंने कहा नहीं पढ़ता नहीं हूं, एक बार मैंने गलती से पढ़ दिया था, वो आपकी खिदमत में पहुंच गया। शेर कहता जरूर हूं, पढ़ता नहीं, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो ये जुमला सुन लीजिए, चादर के नीचे क्यों तस्करा नहीं हुआ? तवज्जो, अजल पुकारी के तीर खाकर भी अबुओं पर शिकन नहीं है। आप सुन रहे थे ना, मैं हुस्न मतलब सुना रहा हूं, फिर सुनाऊंगा उस मतलब को। अजल पुकारी के तीर खाकर, अभी आप पढ़ रहे थे ना जनाब अली असगर के हवाले से, हुस्न मतलब सुनिए, इससे बेहतर होगा तो मुझे सुना दीजिएगा। अजल पुकारी के तीर खाकर भी अबुओं पर शिकन नहीं है, कहा ये असगर ने मुस्कुराकर हमारे घर का चलन नहीं है। अजल पुकारी के तीर खाकर भी अबुओं पर शिकन नहीं है, कहा ये असगर ने मुस्कुराकर हमारे घर का चलन नहीं है। तो कहा ये खालिक ने मुस्तफा से कि ओढ़ लीजिए रिदाए ज़हरा, मतलब आखिरी फर्क। कहा कि खालिक ने मुस्तफा से कि ओढ़ लीजिए रिदाए ज़हरा, मसीह दौरा अब इससे बढ़कर इलाजे ज़ोफ़े बदल नहीं है। खुदा सलामत रखे आप सब। ने मुस्तफा से ये ओढ़ लीजिए रिदाए ज़हरा, मसीह दौरा अब इससे बढ़कर इलाज ज़ोफ़े बदल नहीं है। तवज्जो फरमाइए आपने, तन्हा ज़हरा का नाम, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं लिया, सबको ज़मीर के जरिए पहचानवाया। किसके? ज़मीर, अरबी में ज़मीर कहते हैं। देखिए हर आदमी ज़मीर को नहीं समझेगा, ज़मीर को वही समझेगा जिसका ज़मीर बेदार हो। तो जो फरमा रहे हुजूर में क्या कहा, ज़मीर को वही समझेगा जिसका ज़मीर बेदार हो। हर आदमी के ज़मीर पल्ले नहीं पड़ती, ज़मीर को वही समझता है जिसका ज़मीर बेदार हो। जुमला सुनिए, मस्जिद में आ जाइएगा। मैं कहूँगा ए मेरे अल्लाह, सिवाय ज़हरा की किसी का नाम ही नहीं लिया। कहा मतलब समझो, वो जो मैंने कहा था ना इन्नमा वाली बात, कि लोग बाहर वालों को अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का हिसाब है। कहा मतलब समझो मैंने क्यों नाम नहीं लिया। कहा अगर किसी में शक हो, मैं समझा के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है वो समझे इस बात को। कहा अगर किसी में शक हो कि फला 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 अहले बैत में है या नहीं, अगर शक हो कि फला अहले बैत में है या नहीं, तो उसे मरकज पे पलटाओ। नहीं समझे? मैंने आहिस्ता से कहा इम्तिहान लेने के लिए, ताकि आप समझे। क्या कहा? कहने लगे अगर किसी में शक हो, चूंकि मरकज़े तहारत सैयदा, मरकज़े निजाबत सैयदा, कहा अगर किसी में शक हो ना कि कोई अहले बैत में है या नहीं, तो उसे मरकज पे पलटाओ। अगर मरकज से महरम है, सुनिए, अगर मरकज से महरम है तो अहले बैत में है, अगर मरकज से महरम नहीं, सुनिएगा लेला ये नौजवान मेरे भाई, अगर मरकज से महरम है तो अहले बैत में है, अगर मरकज से महरम नहीं तो अहले बैत में नहीं। जुमला संभालिएगा, वो सैयदा का
जिसे सैयदा जवाब सलाम के लायक ना समझे, जिसे सैयदा जवाब सलाम के लायक ना समझे, वो महरम क्या बनेगा? लादा फरमाया आपने, इसलिए कहा अल्लाह ने मरकज़े तहारत सैयदा। अगर किसी में शक होना कि अहले बैत पे है या नहीं, तो उसे मरकज पे पलटाओ, मरकज पे पलटाओ। क्योंकि जब मरकज पे पलटेगा तो पता चलेगा कि अहले बैत का महरम है या गैर महरम, है ना। मरकज पे पलटाओ। देखिए जुमला सुनिएगा मेरे अजीजों, बहुत अच्छा आप समाप्त कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है, मेरा दिल लग रहा है और मुझे एहसास नहीं हो रहा मैंने कितनी देर पढ़ दिया। देखिए लोग घड़ी देख के पढ़ते हैं, क्यों देख के पढ़ते हैं? क्योंकि टाइम देखते कितना हो गया। हुजूर मैं चेहरा देख के पढ़ता हूं, क्योंकि घड़ी पे टाइम नहीं लिखा, चेहरों पे टाइम लिखा है, चेहरे पे टाइम लिखा। जैसे जैसे चेहरा उतरने लगे समझ लेना टाइम कम हो गया। तो सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस वाले चैप्टर को बिल्कुल क्लोज करने जा रहा हूं, चूंकि 50 मिनट से ज्यादा हो गया। मेरे अजीजों ये चैप्टर बिल्कुल आपकी खिदमत में क्लोज। क्यों? इसलिए कि आपने फजीलत जनाब ज़हरा को मुलाहिज़ा फरमा लिया, फजीलत जनाब ज़हरा को सुन लिया। अब थोड़ा सा मकसद जनाब ज़हरा सुन ले कि सैयदा का मकसद क्या है, सैयदा की हयात का मकसद क्या है। जोड़ा याद रखिएगा मेरे अजीजों। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि फला साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, कहते कि नहीं कहते? कहते हैं फला साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, है ना। क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मरने के बाद जन्नत में जाए, मरने के बाद जन्नत में जाए। देखिए ये है जिंदगी की फजीलत, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं है। तो ये है जिंदगी की फजीलत कि मरने के बाद जन्नत में जाए। तवज्जो, ये जिंदगी के फजाइल है कि मरने के बाद जन्नत में जाए। वो कनीज कितनी बाफजीलत होगी जो जिंदगी में जन्नत में हो। वो कनीज कितनी बाफजीलत होगी जो जिंदगी में जन्नत में हो। उसका क्या कमाल है जो जिंदगी में जन्नत में हो। कहते हैं ना हमारे यहाँ लोग। मैं एक जुमला आज उस्मानपुर में बड़ी जसारत के साथ कहना चाह रहा हूँ। हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि वो जन्नत में जाए, सबकी ख्वाहिश ये है वो जन्नत में जाए। इसी जुमले से समझिएगा कि मकसद क्या है सैयदा का। देखिए मकसद ये है विलायत की हिफाजत, वली खुदा की हिफाजत। इसलिए मैं आहिस्ता से 30 सेकंड के अंदर इस बात को कह दूं ताकि नौजवानों की समझ में आ जाए। 75 दिन पैगंबर अकरम की वफात के बाद 75 दिन तक जितना जनाब सैयदा जिंदा रही, उस 75 दिन में हर अंसार का दरवाजा खटखटाया, हर मुजाहिर का और उसका दरवाजा खटखटाया। खटखटा खटखटा के एक ही जुमला कहती रही, तुम गदीर भूल गए। यही था सैयदा का मकसद। कहा तुम गदीर भूल गए, तुम अली की विलायत भूल गए, तुमने वली खुदा को फरामोश कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि नबी खुदा ने अली को गदीर में मौला बनाया था, तुमने फरामोश कर दिया। तो ये है सैयदा का मकसद, वली खुदा को पहचानवाना, वली खुदा को पहचानवाया। मैं मसाइब तक लेके जाऊंगा इस सिलसिले को, लेकिन तवज्जो रहे आप हज़रात की। एक विलायत को पहचानवाना। विलायत कहते किसे हैं? मैंने कहा ना हमारी जिंदगी का आखिरी हदफ यह है कि मरने के बाद जन्नत में जाए। ठीक, जुमले को याद रखिएगा, संभालिएगा जुमले को, ठीक है। लेकिन वो कितने खुश नसीब होंगे जो जिंदगी में जन्नत में रहते हो। उनका मुकाबला है कोई? उनका मुकाबला नहीं है। मैं बड़ी जसारत के साथ एक जुमला कहने जा रहा हूं। ये बताइए जन्नत और जहन्नम का खालिक कौन है? अल्लाह है कि नहीं? भाई अल्लाह, जन्नत भी उसी ने बनाई और जहन्नम भी उसी ने बनाई। किसी को शक है? किसी को शक नहीं। जन्नत का खालिक भी खुदा, जहन्नम का खालिक भी खुदा। लेकिन मैं बड़ी जसारत के साथ मिंबर से कहने जा रहा हूं कि जन्नत तो अल्लाह ने बनाई है, लेकिन जहन्नम उसने नहीं बनाई। एकदम सन्नाटा छा गया आपके ऊपर, एकदम सन्नाटा। क्यों? इसलिए कि बात ही इतनी मजबूत थी कि सन्नाटा छा जाए। अब बताइए, हमारे घर में अगर बाप
اس کے 4 بیٹے ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی اولاد نالائق نکل جائے, تو کیا باپ چاہتا ہے یہ جہنم میں چلی جائے؟ میں ہلکی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, کبھی باپ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے. تو یہ ہمارا باپ جب نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے, تو پھر اللہ کیسے چاہے گا؟ سمجھ کے سنیے, اللہ کیسے چاہے گا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے؟ چاہے گا اللہ؟ نہیں جا سکتا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنت اللہ نے بنائی, لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی. دوسرا جملہ کہوں گا, وزن میں آ جائیے گا. جہنم اس نے نہیں بنائی, جہنم اس سے بنوائی گئی. حوصلہ بڑھا دیا تم نے, حوصلہ بڑھا دیا. جہنم اس نے نہیں بنائی, جہنم اس سے بنوائی گئی. قبلہ دلیل تو دیجئے کہ اللہ جہنم بنانا نہیں چاہتا تھا, اس سے زبردستی بنوائی گئی. میں نے کہا ہاں دلیل ہے, نبی کی حدیث ہے, معتبر حدیث ہے. اے علی, اگر پوری دنیا تمہاری محبت میں جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرے. اگر کم کہی ہو تو بتائیے گا. میں نے کیوں کہا جسارت سے کہہ رہا ہوں کہ جنت تو اس نے بنائی ہے, لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی. کیوں؟ اے علی, اگر پوری دنیا تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی نا تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. کہا یہ ہے ولی خدا, یہ ہے ولی خدا. اور جناب زہرا اسی کی معرفت کر رہی تھی, اسی کی معرفت کے لیے گئی تھی. جملہ سنیے, 2-3 جملے اور رہ گئے ہیں, لیکن معرفت کے حوالے سے سنیے گا. کیا ہے جناب زہرا کا مقصد؟ کہا ولایت کی حفاظت, ولی خدا کی حفاظت. پہلی منزل پہ پہچنوایا. اب جملہ سنیے, اب وہ میں حدیث کا سہارا لوں جس میں آیا ہی لفظ ولایت ہے. سائل نبی کی خدمت میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا, یا نبی اللہ, مجھے دین سکھا دیجئے, مجھے دین بتائیے کہ دین کیا ہے. نبی نے کہا سنو, 5 چیزوں کا نام دین ہے. کہا کون کون؟ کہا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. توجہ ہوئی؟ کہا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. سائل بھی بڑا جسور تھا, اس نے کہا یا نبی اللہ, ان 5 میں بہتر کون ہے؟ ان 5 میں افضل کون ہے؟ اتنا بتائیے. نبی نے کہا کہ سب سے افضل ہے ولایت, سب سے افضل ہے ولایت. میرے عزیزوں, جسارت کی انتہا کر دی. اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا یا نبی اللہ, اس کا نمبر تو 5واں ہے. لیکن میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں, سمجھ جائیے گا للہ. کہا اس کا نمبر تو 5واں ہے, یہ پہلے نمبر پہ کیسے جائے گی ولایت؟ میرے عزیزوں, کچھ لوگ نمبر میں ہی پھنسے ہیں. مشکل یہیں پہ ہے, مشکل یہیں پہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کون چوتھے نمبر پہ ہے. کہنے لگے ساری مشکل یہی ہے. کہنے لگے کیا ہے سب سے افضل کون؟ کہا ولایت, ولایت ہے سب سے افضل. میرے عزیزوں, اتنی انتہا کر دی اس نے. کہا یا نبی اللہ, میں سمجھے بغیر نہیں جاؤں گا. آخری خط تک میں توجہ چاہ رہا, جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں, آگے والوں نے خوب زور لگا دیا, خوب حوصلہ بڑھا دیا. اس جملے کے حوالے میں پیچھے والوں میں کر رہا ہوں. کہنے لگے کیا کہا؟ کہا سب سے افضل ولایت. یا نبی اللہ, کیسے ہوگی, ثابت کیجئے. سب سے افضل ولایت کیسے ہے, اس بات کو ثابت کیجئے. نبی نے کہا سنو, نماز سفر میں آدھی ہے یا پوری ہے؟ آدھی ہے نا, سب کے لیے آدھی نہیں. جو زیادہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے سفر میں بھی پوری, سب کے لیے آدھی نہیں ہے. کہا روزہ سفر میں آدھا یا پورا؟ دیکھیے آدھا پورا میں کہوں گا تو قصر والی بات رہ جائے. توجہ ہے. کہنے لگے کہ نماز, کہا نماز سفر میں قصر, قصر کا مطلب آدھا ہی تو ہوتا ہے. کہا روزہ
सफर में कसर, लेकिन जो ज्यादा सफर कर रहा हो कहा वो पूरा रखेगा, है वो आधा नहीं रखेगा। तवज्जो कीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। मैं जुमला आपकी खिदमत में विलायत के हवाले से पढ़ रहा हूँ। कहा नमाज सफर में आधी, रोजा सफर में कसर, हज के लिए इस्तिताअत जरूरी। लफ्ज़ सुनिएगा, हज के लिए इस्तिताअत जरूरी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हो, तुम पैसा लेके हज पे चले जाओ दिखाने के लिए कि हाजी साहब आ गए, ठीक है। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, पहले बच्चों का नफला पूरा करो तब हज पे जाना। तो हज के लिए इस्तिताअत जरूरी। ज़कात, ये चारों चीजें थी ना। कहा ज़कात, कहा ज़कात के लिए माल का मुकम्मल होना जरूरी। जब तक माल मुकम्मल नहीं तब तक ज़कात मुकम्मल नहीं। अब जुमला सुने, साहिल ने क्या कहा, या नबी अल्लाह विलायत का नंबर तो 5वां है, आप कह रहे हैं सबसे अफजल। कहा नमाज सफर में आधी, रोजा सफर में कसर, और हज के लिए इस्तिताअत जरूरी, ज़कात के लिए माल का मुकम्मल होना जरूरी। लेकिन विलायत अकेली वो शय है कि सफर में भी पूरी। ये नबी का जुमला है। कहा विलायत वो शय है कि सफर में भी पूरी, हज़र में भी पूरी, हज में भी पूरी, ज़कात में भी पूरी। विलायत का मामला एक विलायत का मामला ही अजीब है। कहा विलायत सफर में आधी नहीं होगी, विलायत हसर में आधी नहीं होगी। ये नबी का जुमला आपने मुरादा फरमाया। तो ये है वली खुदा, एक वली खुदा की अहमियत। जनाब ज़हरा विलायत को पहचानवाना चाहती थी, लिहाजा ये काम कर रही थी। आखिरी मरहले में आ गया मैं। बहुत खुदा सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा आपने अगर दूसरी कौम के लोग आके देखें तो इस बात को कहेंगे कि आपने शहादत फातिमिया का हक अदा कर दिया। अगर दूसरे लोग देखें, जनाब ज़हरा के मकसद के हवाले से बस मैं एक बात पढ़ूंगा। मकसद जनाब ज़हरा क्या था? कहा हिफाजत वली खुदा, विलायत की हिफाजत, ये है मकसद जनाब ज़हरा। आप लोगों ने हदीस सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। हदीस है अन-नज़्रु इला वजहि अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। एक हदीस और आई अन-नज़्रु इला अली इबादत, सिर्फ अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है, पूरा वजूद अली इबादत है। पूरा वजूद अली। देखिए अगर हल्के से किसी बात को कहा जाए तो हल्की नहीं है, बात में वजन है। तवज्जो कीजिएगा, पूरा वजूद अली इबादत है। अच्छा ये वाली जो हदीस है ना कि पूरा वजूद अली इबादत है, ये उस वाली हदीस से ज्यादा है। मुफस्सिरीन ने लिखा उस हदीस से ज्यादा। कौन सी? कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। चूंकि मैं मतलब बताऊंगा आपको, एक वली खुदा की बात है, लिहाजा मैं मतलब बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। क्यों अली के चेहरे को देखना इबादत, ये हदीस कम, अली को देखना इबादत, ये हदीस ज्यादा। हुजूर मतलब तो समझाइए। कहने लगे जब अली ने बाब खैबर उखाड़ा तो बाब खैबर को अपने हाथों पर रखा हुआ था, उधर जो है वो गड्ढा था, फसील खैबर से उस दरवाजे को लगा दिया। लश्कर जो है वो दरवाजे पे सफर करके इस तरफ आने लगा। सहाबियों ने नबी का चेहरा देखा। या नबी अल्लाह, आप देख रहे हैं अली के हाथों पे बाब खैबर है, आप देख रहे हैं अली के हाथों पे बाब खैबर है। कहा बेवकूफ, तू हाथ देख रहा है, मैं पैर देख रहा हूं। माशाअल्लाह, हौसले की बात है, बहुत अच्छा आप समाप्त कर रहे हैं। क्या कहा? तू हाथ देख रहा है, मैं पैर देख रहा हूं, कि जमीन पर नहीं है। जज़ाकल्लाह। तू हाथ देख रहा है, मैं पैर देख रहा हूं कि जमीन पे नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ वजूद अली इबादत है, अली का चेहरा इबादत नहीं है। अच्छा सुनिए, ये इबादत है। तो हुजूर जितनी हदीसें हम सुनते हैं, क्या उनमें आपस में कोई रब्त नहीं है? क्या बगैर रब्त की हदीसें हैं? जहां जिसका जैसा दिल चाहा नबी ने कह दिया? कहा नहीं, जब हम बगैर दिल के नहीं कहते तो नबी जो है वो कैसे कह सकता है अपनी बात? वही के मुताबिक बात करता, नबी वही के मुताबिक कलाम करते हैं। एक हदीस और सुनिए, दूसरी एक हदीस है जिक्रो अली इबादत,
क्या मतलब हुआ? अली का जिक्र इबादत है। विलायत की अहमियत समझिएगा। आखिरी जुमलात है, आखिरी लम्हात है का एक हदीस है, हुब्बो अली ये नबादा, अली की मोहब्बत ही इबादत है। तवज्जो फरमा रहे। पहली हदीस मैंने क्या सुनाई? अब आपस में राबिता क्या है इसे सुनिए, लुत्फ आ जाएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। आपस में राबिता क्या है हदीसों का? दिल वाली बात नहीं है। राबिता सुनिए हुजूर, आपस में राबिता क्या है? कहा नबी ने फरमाया अन्नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे को देखना है इबादत। साइल नबी के पास आ गया और कहने लगा या नबी अल्लाह, आपने ये कहा है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है और मैं हूं आंखों से अंधा। नहीं, मतलब सुनिएगा, आपस में राबिता क्या है? कहा मैं हूं आंखों से अंधा, तो फिर मैं कैसे इबादत करूं? मैं तो इबादत से रह गया ना। अली के चेहरे को देखना इबादत और मैं हूं आंखों से अंधा, तो मैं तो इबादत नहीं कर सकता। इबादत तो रह गई ना मुझसे। नबी ने कहा नहीं, जिक्रो अली नबादा, मतलब सुनिएगा, कहा जिक्रो अली नबादा, अली का जिक्र ही इबादत है। देखिए साहिबान अदब तशरीफ फरमा है, लिहाजा इस जुमले में लुत्फ आएगा। साहिबान अदब तशरीफ फरमा है, जुमला सुनिए क्या है? का जिक्र अली नबादा, जिक्र का ताल्लुक दो चीजों से है। जिक्र का ताल्लुक जबान से भी है, जिक्र का ताल्लुक समाज से भी है। जिक्र सुनने पे को भी कहते हैं, जिक्र बोलने को भी कहते हैं। समझ रहे आप? जिक्र सुनने को भी कहते हैं, जिक्र बोलने को भी कहते हैं। नबी ने कहा तुम आंखों से अंधे हो तो सुन के कर लो। नहीं, तवज्जो देखिए, आखिरी लम्हात है। कहा तुम आंखों से अंधे हो तो सुन के जिक्र अली कर लो, कानों से बहरे हो तो बोल के जिक्र अली कर लो। लेकिन छूटोगे नहीं, कहीं से छुटकारा नहीं है, तुम्हें करना जरूर है। अब हदीस सुनिए, कहा आंखों से अंधे हो, देख के करो, नहीं देख सकते बोल के करो, जिक्र अली बोल नहीं सकते सुन के करो। अगर अंधे भी हो, बहरे भी हो, गूंगे भी हो तो हुब्बो अली ने वादा। आखिरी जुमला है, कहा हुब्बो अली ने वादा, अली की मोहब्बत ही इबादत है, मोहब्बत ही इबादत है। यानी नबी ये बताना चाहते हैं कि ये तो मुमकिन है कि कोई अंधा हो, ये मुमकिन है कि बहरा हो, ये मुमकिन है कि गूंगा हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि उसके पास दिल ना हो। आखिरी जुमला है, कहा ये तो मुमकिन है कि अंधा हो, ये मुमकिन है कि बहरा हो, ये मुमकिन है कि गूंगा हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि दिल ना हो। इसलिए कि अगर दिल नहीं है तो जिंदगी नहीं है। हुजूर, अगर दिल नहीं है तो फिर जिंदगी नहीं है, अगर दिल नहीं है तो फिर जिंदगी नहीं है। यानी नबी क्या बताना चाहते हैं? नबी ने कहा कि जिक्र अली जिंदगी का नाम है। तवज्जो फरमाया, ये है वली खुदा की अहमियत, ये है वली खुदा की अहमियत। अगर दिल नहीं तो फिर जिंदगी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दिल है हरम खुदा, दिल है अल्लाह का घर। मेरे अजीजों, और इसीलिए खुदा का शुक्र है माशाल्लाह, आखिरी जुमला लेते जाइए, मौजू से मरबूत नहीं है, मैंने सारा मौजू आपकी खिदमत में पढ़ दिया, लेकिन एक जुमला बस लेते जाइए, चूंकि मामला दिल का था और जिक्र अहले बैत से हमारा दिल लगाव इतना है कि दुनिया इस समंदर में डूब भी जाए तो निकल नहीं पाएंगे। इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा ताल्लुक है। बात दिल की है, समझ के सुनिएगा और जिंदगी भर दुआएं दीजिएगा। एक बीमारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो रही है, दूर हो गई है, तकरीबन आखिरी जुमला, बीमारी दूर हो गई है इंशाल्लाह, वैक्सीन वगैरह सब आ गई है। हम लोग उस दौर में ईरान में थे जब उरूज पे था मामला, जब बीमारी उरूज पे थी। कब?
یعنی مارچ کا مہینہ یاد کیجیے، فروری کا مہینہ یاد کیجیے، تو اس زمانے میں کچھ گائیڈ لائن آئی تھی. بات دل کی ہے، آخری جملہ. کچھ زمانے میں کچھ گائیڈ لائن آئی. تو ایک ڈاکٹر تھا جو فورن کا تھا، یو ایس اے کا تھا تقریباً. تو چونکہ لگاؤ ادھر تھا تو لہٰذا یہاں اپنی خدمت کر رہا تھا ایران کے اندر. تو وہ کہنے لگا، ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ کو پتا ہے گائیڈ لائن کچھ آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ میں خود یہ پتا کر لیں کہ ہم نگیٹو ہیں یا پوزیٹو، خود ہی پتا کر لیں گے. ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگے سنیے، آپ صبح سویرے ایک سانس کھینچیں اور سانس کھینچنے کے بعد اسے آہستہ آہستہ چھوڑیں. جب آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، اگر آپ کا دم نہیں پھولا، اگر کھانسی نہیں آئی تو سمجھ لینا کہ آپ نگیٹو ہیں. کیا کہا؟ اگر دم نہ پھولا، اگر کھانسی نہیں آئی تو سمجھ لینا کہ آپ نگیٹو ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جملہ سنیے گا، زندگی برداشت دیجیے گا. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا حضور پتا ہے آپ کو یہ والا ٹیسٹ تو روزانہ ہم فرش ادا پہ کر لیتے ہیں. یہ جو آپ ٹیسٹ بتا رہے ہو نا، یہ روزانہ ہمارے یہاں فرش ادا پہ ہوتا ہے. کہا حضور کیسے ہوتا ہے روزانہ؟ سنیے جملہ، کیسے ہوتا ہے روزانہ؟ میں نے کہا حضور جب منزل عروج پہ ہوتی ہے نا، مجلس جب عروج پہ ہوتی ہے تو نوجوان کھڑا ہو کے نعرہ حیدری لگاتا ہے، سانس تقریباً جاتی ہے 15 سیکنڈ. جب دوبارہ پلٹ کے پیٹ میں آتی ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نگیٹو ہے. مجلس مکمل ہو گئی. کہنے لگے ہم اس نعرے سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نگیٹو ہیں. ماشاءاللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اس نعرے سے چچا پتا چل جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نگیٹو ہیں. ایک گائیڈ لائن اور آئی تھی، مجلس مکمل ہو گئی ہے، بس یہ آپ کی قدرت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. صرف ایک جملہ، ایک گائیڈ لائن اور آئی. کہنے لگے آپ صبح سویرے اٹھیے اور اٹھنے کے بعد ہلکا ہلکا اپنے سینے کو پنچ کیجئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہلکا ہلکا پنچ کیجئے. جیسے یہ سینہ ہلکا ہلکا پنچ ہوگا تو سانس میں رفتار آئے گی. جب رفتار آئے گی تو جراثیم خود بخود مریں گے. سمجھ نہیں رہے آپ میں کیا کہا؟ کہنے کہ حضور جیسے جیسے آپ پنچ کریں گے نا، رفتار بڑھے گی، رفتار بڑھے گی تو اس سے سانس میں اضافہ ہوگا، جراثیم مریں گے. میں نے کہا خدا سلامت رکھے عزاداری جناب زہرا کو، عزاداری جناب زہرا کو خدا سلامت رکھے. ہم روزانہ ٹیسٹ کرتے ہیں ماتم کے ذریعے سے. ہم ماتم کے ذریعے سے روزانہ یہ کام کر لیتے ہیں. کہتے کہ حضور اگر دم نہ پھولے تو سمجھ لینا کہ آپ نگیٹو ہیں. میں نے کہا حضور ماتم سے ہمارا دم نہیں پھولتا، دوسروں کا پھولتا ہے. مکمل ہو گئی مجلس. خدا سلامت رکھے آپ سب کو، خدا حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو. آپ نے حق ادا کر دیا شہادت فاطمیہ کا. میں نے یہ 2 جملے آپ کی عزاداری کے لیے اس لیے کہا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دل عزاداری سے جڑا نہیں ہے، ہماری زندگی عزاداری سے جڑی ہے. ہماری زندگی عزاداری سے جڑی ہوئی ہے. میرے عزیزوں، خدا سلامت رکھے آپ سب کو. شہادت فاطمیہ سے پہلے ہر مجلس میں جناب زہرا عرصہ لینے کے لیے آتے ہیں. دیکھیے اگر فضائل بہت اچھے ہو جائیں اور اگر واقعی مسائل میں لوگ نہیں ہوئے، میں ایک بات پہلے آپ کو بتا دوں،
तो ये समझ लेना कि मजलिस कबूल नहीं है। फजाइल जितने अच्छे पढ़ ले कोई, जितना अच्छा पढ़ ले, अगर मसाइब में नहीं रोया मेरे अजीजों तो मजलिस की कबूलियत नहीं होती। हर मजलिस में पुरसा लेने के लिए जनाब ज़हरा आती है, हर मजलिस में आती है, लेकिन सुगवारों इंसाफ से बताओ इस मजलिस में पुरसा किसे दोगे? इस मजलिस में पुरसा किसे दोगे? चूंकि पुरसा सैयदा का गम है, मजलिस में सैयदा का गम मनाया जा रहा है, ये मुमकिन नहीं कि पुरसा सैयदा को दो, फिर पुरसा किसे दोगे? मेरे अजीजों वक्त का इमाम न जाने किसके पहलू में बैठा हुआ है और आंखों को देख रहा होगा कि कौन मेरी माँ के गम में रो रहा है, कौन मेरी जद्दा के गम में आंसू बहा रहा। खुदाई नवाजों पर रहमत अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदा के, सिवाय गम अहले बैत अत्हार के। सोमवारों एक जुमला आपसे और पूछूंगा, एक जुमला और पूछूंगा, इंसाफ से बताइएगा। खुदा ना खास्ता अगर किसी ऐसी माँ की मजलिस हो कि उसके बच्चे ना हो, उसके बच्चे मौजूद ना हो, तो इंसाफ से बताइए अगर उसके बच्चों को खबर होगी कि कोई मेरी माँ की मजलिस करा रहा है तो बच्चे कितनी दुआ देंगे, बच्चे कितना शुक्रिया अदा करेंगे। आपको मालूम है खुशानसीब है इस बज़म को मुनक्किद करने वाले, खुशानसीब है, मैं उनके हक में दुआ करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा शहादत फातिमिया का एहतमाम किया है, ज़हरा का गम मना रहे हैं। मेरे अजीजों इमाम ज़माना की माँ की मजलिस रखी है ना आपने, मौला आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ए चाहने वालों तुम्हारा शुक्रिया। खुदा अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय हमें बतूल के, सिवाय हमें बतूल के, खुदा कोई गम न दे। मेरे अजीजों मसाइब में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, मसाइब तवील पढ़ूंगा, हाँ लेकिन इतने भी तवील नहीं चूंकि आप वाकई रोते हुए आए हैं, आप 3 दिन से रो रहे हैं, 4 दिन से रो रहे हैं मुसलसल। लेकिन एक जुमला पूछूंगा, इंसाफ से बताइए, सैयदा पे इतने मजालिम पड़े, इतने मजालिम पड़े, लेकिन सैयदा अपना गम भूल गई और एक ही जुमला सैयदा ने पूछा, सैयदा ने एक ही जुमला पूछा, कहा कि अबुल हसन कहाँ है, अली कहाँ है, अपने सारे मसाइब भूल गई। एक ही जुमला पूछा अबुल हसन कहाँ है, तो मेरे अजीजों क्या देखा, अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा डाल के लोग घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। जैसे ही सैयदा जुमला बर्दाश्त कर सकती है मेरे अजीजों, सैयदा अपना गम फरामोश कर गई और यही कहती रही, खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल बखेर दूंगी, अबुल हसन को छोड़ दो। मेरे अजीजों सलमान कहते हैं जैसे ये जुमला सैयदा ने कहा ना कि अपने सर के बाल परेशान कर दूंगी, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, दीवार उठ गई। मैं कहूंगा ए खुदा, सैयदा का इतना पासोलिहार, इतना पासोलिहार कि दीवारें मस्जिद नबवी की बुलंद हो गई, लेकिन हाय रे ज़ैनब, बाज़ारे कूफा और शाम में मुनादी निदा दे रहा था, ये अली की बेटी है। अल्लाह नवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदा के। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। मेरा अजीज एक जुमला कहना चाहता हूँ, सैयदा अपना सारा गम भूल गई, सारा गम भूल गए, बस एक ही गम याद रहा, अबुल हसन को कैसे लेके गए थे। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मक्तल पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे अजीजों लिखा हुआ है जब अबुल हसन को लोग लेके गए ना घसीटते हुए, तो एक मर्तबा सैयदा पीछे पीछे गए और जाने के बाद मौला के कमर में पटका था, सुनेंगे रिवायत तड़प जाएंगे, मौला के कमर में पटका था, उस पटके का सैयदा ने सहारा लिया ताकि लोग अबुल हसन को छोड़ दें। एक तरफ से सैयदा पटका कमर का पकड़े हुई थी, दूसरी तरफ से 10 आदमी जोर दे के पटका खींच रहे थे, दूसरी तरफ से 10 पटके को खींच रहे थे। मक्तल ने अजीब जुमला लिखा, जब लोग घसीटते हुए लेके गए ना तो सैयदा भी घसताती हुई काफी दूर तक गई। मेरे अजीजों मर जाने
वो मोटी मोटी कीलें कहाँ चली गई? मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि सैयदा के पहलू में पैवस्त वो कीलें हो गई। मैं कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? सैयदा के पहलू में पैवस्त कीलें हो गई। अब कयामत का जुमला मक्तल ने लिखा, कहा जब लोगों ने दरवाजे को धक्का दिया ना, तो सैयदा दरवाजे के नीचे और 50 आदमी तकरीबन दरवाजे पे हो गए उस तरह। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। खुदा आपको कोई मौला दे सिवाय गमे सैयदा के, सिवाय गमे मौला के। मेरे अजीजों, एक रिवायत का सहारा लेना चाहता हूँ। रोज़े शहादत है, एक रिवायत का सहारा लेना चाहता हूँ। इमाम जाफर का एक शागिर्द था। मौला ये जुमला मुझसे पढ़वा ले ताकि हक अदा हो जाए इस मजलिस का। इमाम सादिक का एक शागिर्द था जिसका नाम था बशार। इमाम के पास आया और आके कहने लगा, मौला मौला मौला, मैं आज ऐसे एक मंजर को देख के आ रहा हूँ कि मौला मेरा दिल फटा जा रहा है। कहा क्या हो गया बशार? कहा मौला मैंने अजीब मंजर देखा। क्या हुआ? कहा मैंने देखा मंसूर दवानगी के अफराद एक ज़ईफा को घसीटते हुए लेके कैदखाने में जा रहे थे, घसीटते हुए लेके कैदखाने में जा रहे थे। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है, पता नहीं अगले साल कौन शहादत फातिमिया में बचेगा, कौन नहीं बचेगा। लेकिन ये सैयदा, इन चेहरों को फरामोश मत करना, रोज़े महशर याद कर लेना। मेरे अजीजों, बशार ने कहा मौला मैंने क्या देखा? लोग ज़ईफा को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। मौला ने कहा बशार, लोग उसे क्यों घसीट रहे थे? कहा मौला उसने आपकी दादी ज़हरा के कातिलों पर लानत पढ़ दी थी। लोग इसलिए घसीट रहे थे कि आपकी दादी ज़हरा के कातिलों पे लानत पड़ दी थी। मेरे अजीजों, मौला कहते हैं बशार चलो मस्जिद में चलें और उसकी रिहाई की दुआ करें, उसकी रिहाई की दुआ करें। मेरे अजीजों, कुछ देर के बाद इमाम की दुआ से वो वापस आई। जैसे वापस आई, ये है कयामत का जुमला जिसके लिए मैंने 2 जुमले पढ़े हैं। इमाम के पास आई, इमाम ने कहा ए मुअज़्ज़मा, ए ज़ईफा, तूने मेरे ज़हरा के कातिलों पर लानत क्यों पढ़ी? कहा मौला मैं रास्ते से जा रही थी, इतने में मुझे पत्थर से ठोकर लगी। उस ठोकर का लगना था कि मैं पसलियों के बल उस पे गिरी। जैसे ही गिरी ना मौला, मेरी पसलियां टूटी नहीं थी, लेकिन दर्द इतना था कि सांस नहीं ली जा रही थी। हक अदा कर दिया आपने, रोने का हक अदा कर रहे हैं। कहा मौला दर्द इतना था कि सांस नहीं ली जा रही थी। ए मौला, आपको पता है जैसे ही मैं गिरी मुझे सैयदा की मुसीबत याद आ गई। अरे मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी, सैयदा की 3 पसलियां टूट के बेबस हो गई थी। सैयदा कैसे 75 दिन जिंदा रही? खुदा इन बातों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदा के। मजलिस मुकम्मल हो गए। सोगवारों, सैयदा के पहलू में कितना दर्द था, सैयदा के पहलू में कितना दर्द था, इस जुमले से आप समझेंगे। सैयदा ने 75 या 95 दिन नमाज पढ़ी ना, नमाज पढ़ी, लेकिन कहाँ पढ़ी? सहने खाना में नहीं, हुजरे में नहीं, दीवार के करीब, दीवार के करीब। इसलिए कि जब भी नमाज के लिए उठना चाहती है ना, तो दर्द उठने नहीं देता। सैयदा दीवार का सहारा लेंगे, सैयदा दीवार का सहारा लेके उठती थी। बर्दाश्त कर सकते हैं मेरे अजीजों। इमाम हसन ने कहा मादर गिरामी, अब सैयदा खड़े होके नमाज नहीं पढ़ पाती, देखा बैठ के नमाज पढ़ रही थी। मेरे अजीजों, रात भर दीवार से लगे हुए बैठी रही सैयदा। इमाम हसन कहते हैं मादर गिरामी, आप क्यों बैठी हैं? आप लेट क्यों नहीं जाती? आप आराम क्यों नहीं कर लेती? मेरी माँ बहनें भी सुन रही है मजलिस, कयामत हो जाएगी जुमले में। सैयदा कहती है बेटा हसन, तुझे मालूम है जब मैं लेटती हूँ तो पसलियां लेटने नहीं देती, जब मैं लेटती हूँ तो पसलियां लेटने नहीं देती, जब मैं दाएं करवट होती हूँ तो ताजियाने इतने हैं बाजुओं पर कि लेटा नहीं जाता, ना तो लेटा जाता है ना मुझसे बैठा जाता। ए बेटा हसन मैं क्या करूं, बेटा हसन मैं क्या करूं? मेरे अजीजों,
यही वजह है कि इमाम हसन ने जो देखा ना, आखिरी वक्त था सैयदा का, आखिरी जुमला है, आखिरी वक्त था। इमाम हसन पता है कहाँ थे? सैयदा के पैरों से अपने रुखसार को मस कर रहे थे। हुसैन गोशे में खड़े हुए थे, हसन जो है वो पैरों से लिपटे हुए थे। जब रावी ने पूछा, मौला आप इतना क्यों तड़प रहे हैं? मौला हुसैन भी रो रहे हैं लेकिन इतना नहीं रो रहे जितना आप रो रहे हैं। हसन का जुमला सुनेंगे, कहा रावी जो मैंने देखा है ना वो हुसैन ने नहीं देखा। कहा मौला क्या देखा? कहा मैंने एक बदनसब को देखा, वो मेरी माँ पे जसारत कर रहा था। ये सलवारों मजलिस तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो गई। मेरी माँ पे जसारत कर रहा था। जुमला जेब नहीं देता वरना मैं पढ़ देता। जसारत कर रहा था। मेरे अजीजों, कयामत तो तब हो गई जब हसन दौड़े हुए मस्जिद में पहुंचे और हुसैन दौड़ के मस्जिद में गए। जाके कहा बाबा माँ इस दुनिया से चली गई, बाबा माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। अली पर कितना कलक हुआ मजलिस तमाम। अली पे कलक ये हुआ कि मस्जिद से बाहर निकले तो कमर पे हाथ रखे हुए, कमर पे हाथ रख के निकले। एक कदम रखा, दूसरे कदम पे मुंह के बल जमीन पर गिर गए। ए सैयदा मुझसे गम बर्दाश्त नहीं होता। इन आंसुओं को कबूल फरमा। बीबी, ए बीबी, हमसे वो हक अदा नहीं हुआ जो हक अदा होना चाहिए था। बीबी, हम ये वादा करके इस फर्ज से जाते हैं कि अगले साल इससे बेहतर अंदाज में आपका गम मनाएंगे। मेरे अजीजों, मसाइब में अक्सर जब मसाइब तमाम हो जाते हैं, चूंकि इतने सारे मोमिनीन भी तो आए हैं, इनका भी तो हक है कि इन्हें दुआओं में याद रखा जाए। खासतौर से वो अफराद जिन्होंने मजलिस का एहतमाम किया है। हर मोमिन अपने दुखे हुए दिल को लेकर फर्श अज़ा पे आता है, और अगर किसी का कोई मैटर फंसा हो, कोई मुश्किल हो, तो मौला से बैठ बैठ के कहता है मौला काश के हल हो जाए, मौला काश के हल हो जाता। मेरे अजीजों, खास तौर से हमारे हिंदुस्तान में जो औरतें जिंदगी बसर करती है ना, न जाने उनके पहलू में कौन सा दिल है, कौन सा दिल है उनके पहलू में कि वो अपना सब कुछ अपने बच्चों पर कुर्बान कर देती, अपने शौहर पर कुर्बान कर देती। यहाँ तक कि अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर शौहर ऑफिस होता है ना तो वो घर में खाना नहीं बनाती। एक जुमला मसाइब का सुनिएगा, और यही इस मजलिस की दुआ भी है। मैं चाहता हूँ कि आंसुओं के साए में दुआ करें आप। मेरे अजीजों, ये पहलू न जाने कौन सा पहलू है औरतों के दिल में। इसमें से अक्सर अफराद जियारत पे गए हैं ना, आप जियारत पे गए, लिहाजा मैं आपको दलील बना के कहना चाहता हूँ, आप नाज़िर रहिएगा। नजब गए हैं आप, मौलाए कायनात का रोज़ा कितना आलीशान है, कितना आलीशान रोज़ा है। देख के तबीयत खुश होती है, रहने को जी चाहता है, वापस आने को जी नहीं चाहता। मेरे अजीजों, वहां से काज़मैन चले जाएं, 7वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है, 9वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है। वहां से सामर्रा चले जाएं, जो लोग समझ गए वो रोएंगे। 9वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है। आप वहां से सामर्रा चले जाएं, 11वें इमाम का रोज़ा कितना आलीशान है। तबीयत बहुत खुश होती है, बहुत तबीयत खुश होती है। मेरे अजीजों, वहां से मशहद चले आए, इमाम रजा का रोज़ा पूरी दुनिया के लिए जो है वो जलवा फिगर है, कितना आलीशान रोज़ा है। सैयदा कितनी गरीब है, सैयदा कितनी गरीब है कि आज जन्नतुल बकी में उनकी जियारत नहीं पढ़ी जाती, इमाम रजा के रोज़े में पढ़ी जाती है, इमाम रजा के रोज़े में पढ़ी जाती है। मेरे अजीजों,
ایک عورت کے پہلو میں وہ دل ہوتا ہے کہ اپنا سب اپنے بچوں پر قربان کر دیتی ہے. کیا یہ ہنر سیدہ کے اندر نہیں ہے؟ سیدہ کے بچوں کے اتنے عالیشان روزے ہیں، شوہر کا اتنا عالیشان روزہ ہے، لیکن ہائے رے ٹوٹی ہوئی قبر سیدہ کی، بے سایہ سیدہ کی قبر. آئیے اس مسجد میں دعا کرائی جائے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، کہ ہم اپنی زندگی میں جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں. میرے عزیزوں، الہی آمین میں کمی مت کیجئے گا، یہاں کی دعا ضرور قبول ہوگی. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم اپنی نگاہوں سے امام زمانہ کے ہاتھوں سے جنت البقیع کی تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جن لوگوں نے شہادت فاطمیہ کا اہتمام کیا، جو لوگ شریک ہیں، اے میرے اللہ ان سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما. میرے اللہ جتنے مفروض ہیں ان سب کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگار جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ خصوصاً جو بزرگان پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، اے میرے اللہ ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ان نوجوانوں کے حد میں خاص طور سے جنہوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے، اے میرے اللہ ان کو ویسا بنا دے جیسا زہرا چاہتی ہے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ اے میرے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى أرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ووزراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، أيها السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفدا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله